Welcome to Sushmita's Maths class. Here, maths is made so easy and simple that you will all start loving it. During this pandemic, this is the only thing I can gift you. Children, today we will be doing estimation or rounding off. There are certain situations where we have to give an idea about the number without actual calculations. To find a value that is close enough to the right answer, usually with some thought or calculations involved. For example, if I want to get the question papers printed for you all, I will just count the number of students in one section and then multiply that by 3. So see, if there are 57 students in one section, what I do is I make it 60 and then multiply by 3 so that my calculation is easier. So if I take 57 and multiply by 3, it will be 171. For making my multiplication easy, I'll add 3 to it and make it 60 and then multiply by 3. So my multiplication becomes easier. Now I can round off the number to make it 60. Or do you think I can round off the number to 50 or 55? So for all this we have some rules. See, sometimes we round up the number to the greater number, sometimes we reduce it. If I have to pay the school fees, I have to round up. See, I have to pay rupees 1263. Now, if I don't have change, how much should I carry? Either I should carry 1270 or I should carry 1300, because if I carry 1200, I won't be able to pay the whole fees. Or if I carry 1260, then also I won't be able to pay the fees. So sometimes we have to round up and sometimes we can round down also. So the rules which we should follow are, we have some poor numbers. Actually, the numbers are not poor, but for making our rules easier, we do it. And we have some rich numbers. So for poor numbers, we take it 0, 1, 2, 3, 4. These are poor numbers. The rich number starts from 5, 6, 7, 8 and 9. Now, these poor numbers cannot give anything to the next number when it itself becomes 0. So, it cannot give any number to the next higher number. But when these rich numbers, when they become 0, they give to the next higher number 1. Let's take some example. The number is 2, 3, 4, 9 and another number is 2894. Children, we have to round it up to tens place.
round it up to tens place. Tens place means if I write 10, that means ones place has 0 and the tens place has 1. So we have to see the ones place number in both the cases. This is rich number, so when this becomes 0, this will give one number over here. So the number will become 2, 3, 5, 0. While see, this 4 is a poor number. So when this is a poor number, when it becomes 0, it cannot give any number to the next higher number. So the rest of the number will remain the same. See children, again I'll tell you, there are some poor numbers 0, 1, 2, 3, 4, and there are some rich numbers 5, 6, 7, 8, 9. So these poor numbers cannot give anything to the next higher number while it itself becomes 0. See, for example, we have to change it to nearest 10. So what do we have to do? For nearest 10, ones place has to be 0. So this number has to be 0. Now we will see the number which has to be 0. It is 4, and 4 is a poor number. So it cannot give anything to 9. ये जब खुद 0 बन जाता है तो ये पुअर नंबर है, ये कुछ भी ना अपने से बड़े साइड वाले नंबर को कुछ नहीं दे सकता. तो दिस 9 विल रिमेन एज सच. तो बाकी नंबर सेम रह जाता है. अब यहाँ 9 जो है ये रिच नंबर है. सी, तो 9 जब खुद 0 होगा तो वो अपने से साइड का जो बड़ा प्लेस का नंबर है, दैट इज टेंस प्लेस नंबर, इसको 1 दे देगा. सो दिस 4 विल बिकम 5 और बाकी जो नंबर है वो वैसे ही रह जाते हैं. Now this is the number where we have to change to round off to nearest 100. Round off to nearest 100. तो 100 में क्या आता है? Tens और ones place में 0 आता है. That means इन दोनों को हमें 0 में change करना है. We have to change these to 0. तो ये दोनों तो 0 में हमने change कर दिया. अब जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको हम देखेंगे कि वो रिच है या पुअर. ये पुअर नंबर है 3. सो ये 3 1 को कुछ भी नहीं दे सकता, तो ये बाकी का नंबर हम वैसे ही रख देते हैं. यहाँ टेंस प्लेस के नंबर है 6. 6 क्या है? रिच नंबर है. तो अगर ये 6 रिच नंबर है तो हम 1 यहाँ ऐड करते हैं. ये 6 जब खुद ताला लगाकर घूमने जा रहा है तो अपना सामान यहाँ रख के जाएगा, अपना एक सामान यहाँ रख कर जाएगा. तो ये 1 क्या हो जाएगा? 2. 2 2 0 0. Now this number we have to round off to nearest 1000. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? We have to replace ones, tens and hundreds place by 0. ये ones, tens and hundreds place को 0 से रिप्लेस करना होगा. तो ये 3 नंबर तो 0 बन ही जाएंगे. hundreds, tens and ones place number we have to change to 0. We have to replace ones, tens and hundreds place by 0. Now the last number which we have changed to 0, or the highest place number which we have changed to 0, we will have to see this. इसको देखेंगे. यही हाईएस्ट प्लेस का नंबर है जिसको हमने 0 में चेंज कर दिया है. 3 0 बनाने थे तो 3 0 बना दिया है. ये है रिच नंबर. सी 6. तो ये जब अपने घर में ये ताला लगाकर जा रहा है तो 1 यहाँ देकर जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? 3
4 बन जाएगा, बाकी दोनों नंबर सेम रह जाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ जो नंबर 2 है, 2 इज़ अ पुअर नंबर, सो इट कैन नॉट गिव एनीथिंग टू द नेक्स्ट हायर प्लेस, तो 8 जो है वो 8 ही रह जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा, 3,48,000। Now children, for estimating the sum or difference, what do we do? Add या subtract करते वक्त कैसे estimate करते हैं? सबसे पहले हम ये छोटे वाले नंबर को देखते हैं। Select the smaller number and round off the given numbers to the highest place value of that of the smaller number. अब ये छोटे वाले नंबर को देखा और इसका क्या है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 100। ये 100 टेंस वंस, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है, यानी वी हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। 100 को देखने के लिए, 100 को 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हमें टेंस प्लेस के नंबर को देखना होता है। टेंस प्लेस का नंबर है 6, that means 6 is a rich number, so when 6 becomes 0 it can give 1 to 5, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 600 बन जाएगा। छोटे नंबर को देखते हैं, छोटे नंबर के हाईएस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हाईएस्ट प्लेस इसमें 100 है, तो 100 में राउंड ऑफ करना है। 100 पे अगर राउंड ऑफ करना है तो हमें टेंस प्लेस के नंबर को देखना है, रिच है या पुअर है। रिच नंबर तो 100 प्लेस के नंबर को दे देगा, और अगर पुअर है तो नहीं दे पाएगा। यहाँ 6 है, रिच नंबर है, तो ये 1 इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 5 से 6, इसमें +1 कर देंगे, 600। अब यहाँ 100 प्लेस तक राउंड ऑफ किया है, तो बड़े नंबर को भी 100 प्लेस तक राउंड ऑफ ही करना है। अब 100 प्लेस के में राउंड ऑफ करने के लिए 4 को देखना पड़ेगा। 4 क्या है, पुअर नंबर है, तो 4 100 प्लेस के नंबर को कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि 4 पुअर नंबर है। अब हम इसको क्या कर देंगे फिर, 2 6 0 0, ये दोनों 0 बनेंगे और इसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, तो ये नंबर अनचेंज्ड रह जाएगा, वही रह जाएगा। सो 2 6 0 0। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और अगर चाहो तो ऐड भी कर सकते हो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का रूल सेम है। नाउ वी विल बी एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को एस्टिमेट करने के लिए क्या करना है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स nearest greatest value and then multiply the rounded off numbers। अब nearest greatest value का क्या मतलब है, चलो हम देखते हैं। हमने दो नंबर लिया है, 542 multiplied by 79। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका दोनों फैक्टर क्या है, एक है 542 और दूसरा है 80। दोनों को ग्रेटेस्ट वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 100, यानी वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू नियरेस्ट 100। 100 में करने के लिए कौन से प्लेस को देखना पड़ेगा, टेंस प्लेस को देखना पड़ेगा। टेंस प्लेस का नंबर क्या है, 4, दैट इज पुअर नंबर, सो वो 5 को कुछ भी नहीं दे सकता, तो ये क्या बन जाएगा, 500। ये है 79। 79 में 2 ही प्लेसेस है, यानी इसको टेंस प्लेस के नंबर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। टेंस प्लेस के नंबर तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें वंस प्लेस देखना पड़ेगा। वंस प्लेस में रिच नंबर है या पुअर नंबर है, रिच नंबर है, क्योंकि 9 रिच नंबर है, तो ये जब खुद 0 बनेगा
तो इसको 1 नंबर दे देगा। तो 79 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 10, ये बन जाएगा 80। अब हमें मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। देखो ये मैंने पहले भी आपको मल्टीप्लाई में बताया था, 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम 3 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40, सो इट बिकम्स 40,000। This is how we estimate the product of two numbers, 2 or more numbers. Now children, we will be estimating the product and the quotient. डिवाइड के आंसर को क्वेश्चन कह रहे हैं, मल्टीप्लाई के आंसर को प्रोडक्ट कह रहे हैं। हमने अभी एक एग्जाम्पल कर लिया है, दूसरा करेंगे। अब 692, 692, द ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? 100th प्लेस। सो 100 प्लेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? 10th प्लेस के नंबर को देखेंगे। 10th प्लेस का नंबर है 9, दैट इज अ रिच नंबर। तो ये जब खुद 0 बनेगा तो इसको एक नंबर दे देगा, तो व्हाट इट विल बिकम? 700। अब यहाँ हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? 10th प्लेस। दोनों में 1 है, हमें 1st प्लेस के नंबर को 0 बनाना है, और 1st प्लेस के नंबर जो 0 बन रहा है वो 1 है, दैट इज पुअर नंबर। तो ये इसको कुछ भी नहीं दे सकता, ये बन जाएगा 10। अब हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 zeros एंड 7 ones are 7। बच्चे जब भी हम मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये 1st प्लेस के नीचे ही आना चाहिए, इस साइड में नहीं आएगा। जो नंबर बढ़ेगा वो इस साइड में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1st प्लेस, 10s, 100 और ये 1000 नंबर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ रहा है, इसीलिए प्लेसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए नंबर भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बढ़ेगा। 1st प्लेस के नीचे ये सीधे लाइन में आ जाना चाहिए। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ 100s, 10s, 1s, अगेन हाईएस्ट प्लेस 100 है तो इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। अब जब हम इन दोनों को 0 बना रहे हैं तो ये 6 जो है रिच नंबर है, वो 9 को 1 दे देगा। जैसे ही 9 को ये 1 दे रहा है, ये बन जाएगा 10। एंड नाउ वी कैन डिवाइड। ओके, लेट्स टेक इट एज 19। अगेन 9 इज अ रिच नंबर, ये इसको एक नंबर दे देगा, दिस विल बिकम 20। So we will divide 1000 by 20. 20 5s are 100. Then the 0 will come down. 20 zeros are 0. So this is how we estimate the product and the quotient. If you found this video useful, do share it with your friends and all others who can be benefited.